दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन किया और अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का थ्रो उन्होंने किया है। इसके बावजूद नीरज डायमंड लीग का दोहा चलन नहीं जीत सके। उन्होंने जर्मनी के जूलियन वेबर से सेकंड स्थान प्राप्त किया है। जयबर वेबर ने आपको बता दें हराया, जिन्होंने छठे प्रयास में 91.6 मीटर दूर थ्रो किया था। नीरज 90.23 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 85.64 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचे। भारत की डायमंड लीग में सबसे बड़ी भागीदारी, नीरज चोपड़ा का ऐतिहासिक थ्रो, तीसरे प्रयास में हासिल की उपलब्धि। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर स्कोर किया, जबकि दूसरा थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। ये नीरज चोपड़ा का सबसे लंबा थ्रो है। इससे पहले उनका बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। वहीं नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आना अभी बाकी है और प्रशंसक इस साल उनसे 90 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंकने की उम्मीद कर सकते हैं। नीरज ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे एशियाई और कुल मिलाकर 25वें खिलाड़ी बन गए हैं। दोहा में चल रहे इस इवेंट में नीरज के अलावा मिडिल डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह 5000 मीटर रेस में 9वें स्थान पर रहे। उन्होंने अपने पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड की बराबरी की। नीरज समेत 4 भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। ये भारत की ओर से किसी डायमंड लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या है। Neeraj, congratulations winning second place, but throwing national record 90.23 and 90 meters for the first time in your career. So tell us the truth. Is it sweet or bittersweet performance? It's a little bit bittersweet actually. I'm very happy for 90 meters, but it happened with me also when I broke national record in Turku with over 89 meters, and also in Stockholm I threw 89.94. I was always second, and also here I broke national record and second today. But I'm very happy for Julian also. He threw 91, so we both broke 90 meter today. So we are happy because we tried very hard from so many years. So finally we broke 90 meter, and it was just first competition of the year. So I'm confident then that in next competitions I will throw more far. I think he surprised everybody and himself as well. What did you think when you saw that attempt is flying so far over 91 meters? I was actually very confident because Julian threw very consistent today. He threw 89, 89 and 88. So I told him that today is the day that we can both cross 90 meter mark. So I'm also happy for him, and it's like a good push for us. So in next competition we will push each other and we will throw more far. And your coach, your new coach, Jan Železny, is also here supporting you. And everybody's asking, like, what did you learn? How is the cooperation going? What did you learn from him? If you can elaborate a little bit. It was. I feel very good that Jan Železny is my coach, and we work very hard in South Africa, and we still work on few points because I start working with him in February this year. So it's still I'm learning some things. So I'm very happy that Jan was here for support me. Normally he did not come for Diamond Leagues, and normally he came for big competitions, but he told me that today is the day, because when I throw some warming up throws, Jan told me that today is the day for 90 meters, and also after 90 meters he told me that today you can throw 2-3 more meters. But I'm happy with the 90, and next competitions I will try more hard. Well, definitely you confirm that Doha is a special place for javelin throw. Yes. But why is it so? Do you know exactly what is the condition to throw that? Wind helps. It's like 100%, but also it's like a first competition of the year, so everyone come like with a fresh mindset. After a long time everyone compete, and they feel little hunger inside for throwing far. So it's like a first competition, and wind helps, and also the weather is like it's a little bit hot, so it's good for throw far.
So, did you feel well during the competition? Like all the injuries are gone, you feel well prepared? 90 मीटर प्लस स्कोर करने वाले तीसरे एशियाई एथलीट नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में 90 मीटर से ज्यादा स्कोर करने वाले एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इतना ही नहीं, वे ऐसा करने वाले दुनिया के 25वें जेवलिन थ्रोअर बने हैं। पिछले सीजन में 1 मीटर से गोल्ड चुके थे नीरज चोपड़ा 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका था, लेकिन चैंपियन बनने से 0.01 मीटर दूर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने पहले अटेम्प्ट में 87.87 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया था। क्या है डायमंड लीग? डायमंड लीग एथलेटिक्स का एक टूर्नामेंट है जिसमें एथलेटिक्स के 16 इवेंट होते हैं। ये हर साल दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। डायमंड लीग एथलेटिक्स सीरीज हर साल मई से सितंबर तक आयोजित की जाती है और सीजन का समापन डायमंड लीग फाइनल के साथ होता है। आमतौर पर डायमंड लीग के सीजन में प्रतियोगिताओं की संख्या 14 होती है, जिसमें फाइनल भी शामिल होता है, लेकिन कभी कभी ये संख्या बदल जाती है। हर इवेंट में टॉप 8 खिलाड़ियों को पॉइंट्स मिलते हैं। पहले नंबर के खिलाड़ी को 8 और 8वें नंबर के खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिलता है। 13 इवेंट के बाद सभी खिलाड़ियों के पॉइंट्स काउंट होते हैं। टॉप 10 पोजीशन पर फिनिश करने वाले खिलाड़ियों को डायमंड लीग फाइनल में जगह मिलती है। इनमें जीतने वाले खिलाड़ी को डायमंड लीग विजेता की ट्रॉफी और कैश प्राइज मिलता है। न्यूज डेस्क ANB न्यूज।